فیصل آباد، جو پہلے لائل پور کے نام سے جانا جاتا تھا، پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے۔ اس کی بنیاد 1880 میں برطانوی نوآبادیاتی منتظم سر چارلس جیمز لائل نے رکھی تھی اور اس کا نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ فیصل آباد 20ویں صدی کے دوران پاکستان میں ٹیکسٹائل کی صنعت کا مرکز بن گیا اور آج یہ ملک کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور اس پر مغل سلطنت اور برطانوی راج سمیت مختلف تہذیبوں نے حکومت کی ہے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے دوران فیصل آباد پاکستان کو تفویض کیا گیا تھا اور یہ ملک میں تجارت اور صنعت کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے۔ فیصل آباد، جسے لائل پور بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر ہے۔ اسے 1880 میں برطانوی نوآبادیاتی حکومت نے زرعی ترقی کے مرکز کے طور پر قائم کیا تھا۔ اس شہر کا نام سعودی عرب کے مرحوم شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں فیصل آباد کپاس کی پیداوار اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ایک صنعتی مرکز بن گیا، جہاں کئی نئی فیکٹریاں اور ملیں قائم ہوئیں۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں فیصل آباد نے کئی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے قیام کے ساتھ ایک تعلیمی مرکز کے طور پر اہمیت حاصل کی۔ اس کے بعد سے یہ شہر ایک بڑے صنعتی اور تجارتی مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے، جس میں ایک فروغ پذیر ٹیکسٹائل انڈسٹری اور تیزی سے ترقی کرتے ہوئے سروس سیکٹر ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں فیصل آباد کا بھی نمایاں کردار رہا ہے۔ یہ 1960 اور 1970 کی دہائیوں کے دوران کئی مظاہروں کا مقام تھا، جس میں فوجی حکمرانی کے دور میں جمہوریت کی بحالی کی تحریک بھی شامل تھی۔ آج فیصل آباد ایک بھرپور ثقافتی ورثہ، ترقی پذیر معیشت اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ایک متحرک شہر ہے۔ یہ زراعت، ٹیکسٹائل اور تعلیم کے لیے ایک اہم مرکز بنی ہوئی ہے اور اسے پاکستان کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ فیصل آباد، جسے لائل پور بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ صوبے کا تیسرا اور ملک کا 8واں بڑا شہر ہے۔ فیصل آباد کو 1880 میں برطانوی نوآبادیاتی حکومت نے ایک منصوبہ بند شہر کے طور پر قائم کیا تھا اور اس کا نام سعودی عرب کے مرحوم بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ ابتدائی طور پر ایک چھوٹے زرعی مرکز کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور بعد میں اسے ایک صنعتی شہر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ برطانوی راج کے دوران یہ شہر لائل پور کے نام سے جانا جاتا تھا اور برطانوی کپاس کی تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ آزادی کے بعد یہ شہر زراعت کا ایک اہم مرکز بن گیا، جہاں کپاس، گنا اور گندم جیسی فصلیں بڑی مقدار میں اگائی جاتی تھیں۔ 1980 کی دہائی میں شہر تیزی سے صنعتی ہونے کے دور سے گزرا اور ٹیکسٹائل کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز بن گیا، جس سے اسے پاکستان کا مانچسٹر کا لقب ملا۔ یہ شہر میں واقع متعدد یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اپنی شراکت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ آج فیصل آباد ترقی پذیر معیشت اور فروغ پذیر ثقافت کے ساتھ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے۔ غربت اور شہری کاری جیسے متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود شہر کی ترقی جاری ہے اور یہ پاکستان میں تجارت، صنعت اور تعلیم کا ایک اہم مرکز ہے۔ فیصل آباد، جو پہلے لائل پور کے نام سے جانا جاتا تھا، پاکستان کے مشرقی حصے میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ صوبہ پنجاب کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی بنیاد 1880 میں ہندوستان میں برطانوی نوآبادیاتی حکام نے تجارت کے مرکز کے طور پر رکھی تھی۔ اس کا نام اس وقت پنجاب کے گورنر سر جیمز لائل کے نام پر رکھا گیا تھا۔ برطانوی دور حکومت میں فیصل آباد زراعت اور صنعت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ شہر میں متعدد کاٹن ملز، بانائی کے کارخانے اور دیگر صنعتی یونٹس قائم ہوئے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد یہ شہر پاکستان کا حصہ بنا اور سعودی عرب کے شاہ فیصل کے اعزاز میں اس کا نام فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ اگلے سالوں میں شہر نے زراعت اور صنعت کے ایک مرکز کے طور پر ترقی جاری رکھی،
जिस में कपास की पैदावार, टेक्सटाइल और दीगर मुतल्लिका सनतों पर तवज्जो मरकूज की गई। 1960 और 1970 की दहाइयों में फैसलाबाद ने तेजी से सनतकारी के दौर का तजुर्बा किया। शहर में मुतअद्दिद नई फैक्ट्रियां और सनतें कायम हुईं। इससे शहर की मईशत में इजाफा हुआ और नए मकानात और बुनियादी ढांचे की तरक्की हुई। आज फैसलाबाद एक मजबूत मईशत, बेहतरीन तालीमी इदारों और एक भरपूर सकाफती वर्से के साथ एक तरक्की करता हुआ शहर है। ये अपनी मुतहर्रिक मार्केटों, भरपूर तारीख और रंगीन त्योहारों के लिए जाना जाता है, जो उसे पाकिस्तान में एक मकबूल सियाहती मकाम बनाता है। फैसलाबाद, जिसे लाइलपुर के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ एक शहर है। ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और ज़राअत और टेक्सटाइल की पैदावार का एक अहम मरकज़ है। फैसलाबाद असल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम लाइलपुर था, जिसका नाम एक बरतानवी मुंतज़िम सर जेम्स बराड वुड लाइल के नाम पर रखा गया था। 1880 में गांव को बरतानवी हुकूमत ने एक नए शहर के लिए जगह के तौर पर मुंतखब किया था ताकि खित्ते में तिजारत और ज़राअत के लिए एक मरकज़ के तौर पर काम किया जा सके। सऊदी अरब के शाह फैसल के एजाज़ में 1979 में इस शहर का नाम बाज़ाब्ता तौर पर फैसलाबाद रख दिया गया। बरतानवी दौर हुकूमत में फैसलाबाद तिजारत का एक फ़रोग़ पज़ीर मरकज़ था, ख़ास तौर पर कपास और टेक्सटाइल में। ये शहर कई टेक्सटाइल मिलों का घर था और मुल्क की मईशत में इसका बड़ा हिस्सा था। 1947 में आज़ादी के बाद फैसलाबाद तरक्की करता रहा और ज़राअत और तिजारत के साथ साथ तालीम और तहक़ीक़ का एक अहम मरकज़ बन गया। 1960 और 1970 की दहाइयों में फैसलाबाद ने तेज़ी से तरक्की और जदीद कारी का तजुर्बा किया। शहर की बढ़ती हुई आबादी को एडजस्ट करने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डेवलपमेंट्स की तामीर की गई। शहर की मईशत तरक्की करती रही, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल और ज़राअत की सनतों में, और फैसलाबाद आज तक पाकिस्तान की मईशत में एक बड़ा हिस्सादार है। फैसलाबाद मुतनव्वे आबादी के साथ सकाफती लिहाज से अमीर शहर है। ये मुतअद्दिद तारीख़ी और सकाफती निशानात का घर है, बशमूल तारीख़ी लाइलपुर म्यूज़ियम, जो शहर की तारीख़ और वर्से को ज़ाहिर करता है। ये शहर अपने मुतहर्रिक स्ट्रीट फूड मंज़र, रंगीन बाज़ारों और खूबसूरत पार्कों और बागात के लिए भी जाना जाता है। आखिर में फैसलाबाद की एक भरपूर तारीख़ है और उसने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। ये शहर ज़राअत, तिजारत और तालीम के मरकज़ के तौर पर तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और मुल्क के सकाफती और इक्तिसादी मंजरनामे का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। फैसलाबाद, जिसे लाइलपुर के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान के मशरक़ी सूबा पंजाब का एक शहर है। ये सूबे का तीसरा बड़ा और मुल्क का 9वां बड़ा शहर है। इस शहर की बुनियाद बरतानवी नवाबादियाती इंतज़ामिया ने 1880 में रखी थी और उसका नाम इस वक्त के वाइसराय हिंद सर जेम्स लाइल के नाम पर रखा गया था। ये शहर कपास की पैदावार के लिए एक ज़री मरकज़ के तौर पर कायम किया गया था और इसे मशरिक़ का मानचेस्टर कहा जाता था। 20वीं सदी के अवाइल में फैसलाबाद तहरीक आज़ादी का मरकज़ बन गया और बरतानवी राज के ख़िलाफ़ कई मुज़ाहिरों का मकाम था। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद ये शहर सनत व तिजारत के मरकज़ के तौर पर तरक्की करता रहा। 20वीं सदी के दौरान फैसलाबाद ने आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा का तजर्बा किया, जिसने मुल्क भर से ऐसे लोगों को राग़िब किया जो शहर की तरक्की पज़ीर सनतों में रोज़गार के मौक़े तलाश कर रहे थे। 1977 में सऊदी अरब के शाह फैसल के एजाज़ में शहर का नाम बाज़ाब्ता तौर पर लाइलपुर से बदलकर फैसलाबाद कर दिया गया। आज फैसलाबाद एक बड़ा सनती शहर है जो टेक्सटाइल, केमिकल्स और ज़री मसनूआत की पैदावार के लिए जाना जाता है। ये मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों, अजायब घरों और सकाफती इदारों का घर भी है, जो उसे तालीम और सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ बनाता है। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हुए शहर की तरक्की और तौसी जारी है। फैसलाबाद, जिसे लाइलपुर भी कहा जाता है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है।
इसे बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत ने 1897 में एक शहर के तौर पर कायम किया था और उसका नाम पंजाब के इस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स लाइल के नाम पर लाइलपुर रखा गया था। इस शहर का असल मकसद ज़राअत के मरकज़ के तौर पर काम करना था और इसे कपास की पैदावार का मरकज़ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 20वीं सदी के अवाइल में यह शहर इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत में तहरीक आज़ादी का एक बड़ा मरकज़ था। 1947 में तक़सीम हिंद के बाद यह शहर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और सऊदी अरब के शाह फैसल के एजाज़ में इसका नाम फैसलाबाद रख दिया गया। इसके बाद फैसलाबाद एक बड़े सनती शहर में तब्दील हो गया है, जिसमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल और फूड प्रोसेसिंग की सनतें हैं। ये मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों और हस्पतालों के साथ तालीम और सेहत की देखभाल का एक बड़ा मरकज़ भी है। इस शहर को गुज़िश्ता बरसों के दौरान मुतअद्दिद चैलेंजों का भी सामना रहा है, जिनमें सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी कसाद बाज़ारी और कुदरती आफ़ात शामिल हैं। इन चैलेंजों के बावजूद फैसलाबाद मुसलसल तरक्की और तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान में सनत व तिजारत का एक अहम मरकज़ बना हुआ है। फैसलाबाद, जिसे लाइलपुर भी कहा जाता है, पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ी इलाके में वाक़े एक शहर है। इस शहर की एक भरपूर तारीख़ है जो बरतानवी नौआबादियाती दौर की है। 19वीं सदी के आखिर में बरतानवी हुकूमत ज़राअत की सनत को सपोर्ट करने के लिए खित्ते में एक नया कस्बा कायम करना चाहती थी। इस शहर का नाम लाइलपुर पंजाब के इस वक्त के गवर्नर सर जेम्स बराड वुड लाइल के नाम पर रखा गया था। यह कस्बा सरकारी तौर पर 1880 में कायम हुआ था और इसी साल रेलवे के जरिए लाहौर और मुल्तान से मुंसलिक हो गया था। लाइलपुर तेजी से एक ज़री और तिजारती मरकज़ के तौर पर तैयार हुआ, जिसने खित्ते के दूसरे हिस्सों से बहुत से आबादकारों और कारोबारियों को अपनी तरफ राग़िब किया। ये शहर कपास की पैदावार के लिए मशहूर हुआ और जल्द ही कपास की मिलें कायम हो गईं, जिससे ये खित्ते के सबसे बड़े सनती शहरों में से एक बन गया। 1930 की दहाई में शहर ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की तहरीक के आगाज़ के साथ अपनी पहली बड़ी सियासी हलचल देखी। ये शहर पाकिस्तान के क़याम के लिए अल इंडिया मुस्लिम लीग की तहरीक का मरकज़ था। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सऊदी अरब के शाह फैसल के एजाज़ में लाइलपुर का नाम बदलकर फैसलाबाद रख दिया गया। शहर टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग की सनतों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए एक बड़े इक़्तिसादी मरकज़ के तौर पर तरक्की करता रहा और तरक्की करता रहा। आज फैसलाबाद पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक है और इसे मुल्क का तीसरा बड़ा सनती मरकज़ समझा जाता है। ये एक अहम ज़री मरकज़ और एक अहम तिजारती मरकज़ भी है, जिसमें एक मुतहर्रिक सकाफ़ती और फ़िक्री ज़िंदगी है। फैसलाबाद, जो पहले लाइलपुर के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है। इस शहर का नाम सऊदी अरब के शाह फैसल के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1966 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस शहर की एक भरपूर तारीख़ है, जिसकी तारीख़ वादी सिंध की तहज़ीब से है, जो दुनिया की इब्तिदाई शहरी तहज़ीबों में से एक थी। ये इलाका कदीम गंधारा तहज़ीब से भी आबाद था और बाद में मोरी सल्तनत का हिस्सा बन गया। क़ुरून वस्ती के दौर में शहर पर मुख्तलिफ मकामी ख़ानदानों की हुकूमत थी और बाद में ये मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बन गया। बरतानवी दौर हुकूमत में ये शहर तिजारत और ज़राअत के एक बड़े मरकज़ के तौर पर तैयार किया गया था। अंग्रेज़ों ने इस शहर का नाम लाइलपुर पंजाब के अंग्रेज़ गवर्नर सर जेम्स बराड वुड लाइल के नाम पर रखा। 1947 में पाकिस्तान ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और लाइलपुर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अगले सालों में शहर तिजारत और ज़राअत के मरकज़ के तौर पर तरक्की करता रहा। 1966 में सऊदी अरब के शाह फैसल के एजाज़ में शहर का नाम फैसलाबाद रख दिया गया। आज फैसलाबाद एक बड़ा सनती शहर है और इसे पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर समझा जाता है। शहर की तरक्की पजीर मईशत है, जो टेक्सटाइल, दवासाजी और फूड प्रोसेसिंग की सनतों से चलती है। फैसलाबाद तालीम का एक मरकज़ भी है। इस शहर में मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज और स्कूल वाक़े हैं। फैसलाबाद,
جسے لائل پور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے۔ اس کی بنیاد 1880 میں برطانوی نوآبادیاتی منتظم سر جیمز لائل نے رکھی تھی، جس نے اس کا نام اپنے نام پر رکھا تھا۔ فیصل آباد شروع میں ایک زرعی علاقہ تھا اور اپنی زرخیز زمین کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ برطانوی راج کے دوران شہر نے تجارت میں اضافہ دیکھا اور اسے ٹیکسٹائل اور دیگر سامان کی پیداوار کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے ساتھ ہی فیصل آباد پاکستان کا حصہ بنا اور ایک صنعتی مرکز کے طور پر ترقی کرتا رہا۔ اس شہر کا نام 1979 میں سعودی عرب کے شاہ فیصل کے اعزاز میں بدل کر فیصل آباد رکھا گیا، جنہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کی معاشی مدد کی تھی۔ آج فیصل آباد کو پاکستان کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور ٹیکسٹائل کی صنعت میں اپنی شراکت کے ساتھ ساتھ اپنے بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔